एक बार फिर बात करते हैं। हाँ, फिर बात, कोई दिक्कत नहीं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ऐसा जो भी कुछ होता है, जो भी इस तरह की सारी चर्चाएं होती हैं, मेरा हमेशा, हम भी इसी प्रोसेस से गुजर के आए हैं। कितनी बार हमने इसी तरह के डिस्कशंस किए हैं, बार बार किए हैं, और तब जाके कोई चीज़ें झलकना शुरू हुई। तो अभी आधे घंटे में मेरी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, है ना, कि मैं जो कुछ कहता रहूं और आप सीधे सीधे। हाँ, इतना है कि हम सबका एक सिंसियर एफर्ट है, हम में से किसी का भी, चाहे वर्मा जी प्रश्न करें चाहे संजय जी अपनी बात करें, हम सबकी इंटेंशंस बहुत फाइन हैं, है ना। हम वाकई में चीज़ों को समझना चाहते हैं, समझने के प्रोसेस में जो गैप्स हैं उनको चर्चा से पूरा करना चाहते हैं। उसके पास नहीं है, वो स्वयं में ऊर्जा है। पास वाला कहने से फिर दो हो जाता है, वही बस। ठीक है, क्वेश्चन एकदम जेन्युइन है। फिर से एक बार, स्पेस एंड यूनिट्स, तीसरी कोई चीज है नहीं, और सभी इकाइयां क्रियाशील। यहां तक ठीक है। क्रिया का मतलब है गति, तरंग और दबाव, है ना। तो चाहे हम विज्ञान की संकल्पना से एटम के बारे में कुछ समझे, लेकिन अब हमारा चीजों को, चूंकि कुछ संकल्पना हमारे पास पहले से है, और यदि वो सही है तो उस संकल्पना का उपयोग करते हुए हम चीजों को बिल्डअप कर लेते हैं, है ना। आप अभी विज्ञान की बात की, हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आराम से। तो एक बार हमको ये स्पष्ट हुआ कि स्पेस है और यूनिट्स नहीं है, ऐसी स्थिति को हम विजुलाइज कर ही पाते हैं। संजय जी, ऐसी स्थिति को हम विजुलाइज कर ही पाते हैं। स्पेस है, यूनिट्स नहीं है। यूनिट्स नहीं है की जगह में क्या हम किसी क्रिया को देख पाते हैं, है ना। क्रिया हमको कहां दिखाई देती है? केवल यूनिट्स में। क्रिया हमको केवल यूनिट्स में दिखाई देती है, ठीक। इस तरह से There is no question of visualizing. There is a unit which we feel. yes, yes, yes. There is other than unit. Is space is defined. हाँ, So now you can't visualize it because we are only visualizing with a unit. आपके और हमारे बीच में, बिल्कुल सिंपल बात, आपके और हमारे बीच में क्या चीज है? That is what is creating the problem in discussion. It is only an intuitive reasoning, but that is not what you define. Do you define space is what is between us? हाँ, No. वही It is not. There are many molecules in between. वही आराम से बात, आराम से बात हो सकती है। यस, मॉलिक्यूल्स। You cannot calculate a space without a molecule. Our basic contention which you are having, we have just assigned. So in between you and me there are molecules. एक मिनट, मॉलिक्यूल्स को हम निकाल सकते हैं, जैसे हमारे और आपके बीच में से। Mentally, yes. मेंटली नहीं, फिजिकली। No. No. अरे किसी भी स्पेस, There एक cannot be मिनट, a एक मिनट, space which is without molecules in the universe. That is what science says. If you are doing the science. किसी भी, Can I give an example from some basic mathematics? I'll just give a basic example from basic mathematics. Suppose I've got a system of number line. सिस्टम ऑफ Number line. नंबर, There's infinitely many numbers. You pick up two numbers. There is a distance between the two. Can you say there is no number between the two numbers? This is exactly what we are all trying to say till now. कोई To understand, yes, I accept that. You defined it very good. We intuitively feel there is something other than units. There is no doubt about it. हाँ, And you define that as space. And what you see is a combination of units and space interaction. So the same thing, if you want to put it, we can think of, I can give another mathematical example. Instead of considering a set of real numbers, you can set of integers or natural numbers. You take any two natural number. Between the two natural numbers, there is no natural number. That I can understand. That means, as we all feel, I think a basic definition with some examples will make the things much more clear. If you take the entire number line, between two numbers, there are plenty of numbers, infinite number of numbers. If you take two natural numbers, 1 and 3, or 1 and 2, between 1 and 2, there is no another natural number. So it is very important to say on what basis we are
putting all these definitions. चाहे अपन नेचुरल नंबर्स की बात करें, है ना, चाहे कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि भाई यूनिट्स हैं। एक तो हमको बहुत क्लियरली ये हमारी एक्सेप्टेंस में है कि किन्हीं भी दो प्लैनेट्स के बीच की जो स्पेस है वहां तो हम कह रहे हैं कि यूनिट्स नहीं है और स्पेस है, और इस किसी भी एक प्लैनेट का घूमना, है ना, वो स्पेस में ही है ना, इट इज इन द स्पेस। ये प्लैनेट कहाँ पे है? स्पेस में है। Once you say something is infinite, हाँ, like space is infinite, you say, ऑफ कोर्स, then you can't understand it. ऐसा कैसे? Why it can only be defined. You think once you say it is infinite, how can I understand? What you are telling me, other than units, there is an existence. Yes, that we understand. And define it. And that is the end of it. But in reality, when you go on seeing in the world, you will not get pure space. You will not get pure unit. Just as you said, in between two units there is space. In the space also there is some unit or other. It is so intermingled that you can only define them in purest terms to understand. But you can't, उसका सोच नहीं सकता है. It doesn't exist. Get some examples. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। Another thing what I want to say, even if we say in between two units, say for example in between two planets, there is no unit. There are forces, 6 forces. So how about those 6 forces? Are we consider these 6 forces as unit or not? Because they are having dimensions. Although it is not a physical unit, they are having dimensions. आप यूनिट शब्द का उपयोग ही मत करिए, पदार्थ और स्पेस दो चीजें, तो स्पेस में कोई पदार्थ नहीं है भाई। बहुत साफ, मेरे को नहीं लग रहा कि ये इतना इस तरह से सीधी बात है कि यूनिट्स है और यूनिट्स कहाँ पे हैं, है ना, यूनिट्स आर इन स्पेस। इसमें क्या प्रॉब्लम है मेरे को, है ना, है ना, जहाँ प्लीज एट ए टाइम वन। हाँ, Suppose we list the axioms on which you are functioning. So whatever we define or do, if it falls in those axioms, I think that would clear all our ambiguities. एक्सियम इन द सेंस, Axiom means Axiom is what we consider that is new one, which is not well established. and any system falling fully within that axiom, fine. We can take it as a new structure and pursue with that. Axiom, not assume. Axiom. A-X-I-O-M. Axiom. And in the entire system, the moment we accept one axiom, there will be no violation subsequently. There will be no violation of the axiom. Any system following all the axioms will be given a branded as a particular structure. I think that kind of a logical approach might make the things much more clearer to us. There seems to be some inconsistency. Here space is something which is not matter. There is not a quality. And that's why space is not matter. Non-matter है? हाँ जी, इसका व्याख्या दें शॉर्ट में, थोड़ा सा दिमाग बर्बाद नहीं पहिला चार्ट है। का डिफाइन करते हैं, देन वी विल हैव टू चार विज्ञान है। हाँ जी, एक मिनट। हाँ हाँ जी, पांडेकर जी, एक मिनट। बहुत सिंपल सी बात हम लोगों ने शुरू में किए थे कि पूरा, यदि हम पूरा एक कैनवास देखते हैं, है ना, तो यूनिट्स का होना, है ना भाई, सारी जितने भी हम फोर्सेस की, जो भी हम, एक तो सापेक्ष बात आई कि जो एक रिलेटिव फोर्सेस हैं, बेसिकली यूनिट्स का जो एक्सप्रेशन है, यूनिट्स का जो इंटर रिलेशन है और जो उनका एक परस्पर प्रभाव है, उसके बारे में एक बात आई कि ये बहुत सारे फोर्सेस हैं। लेकिन बहुत मोटी सी बात कि जितनी भी सारी यूनिट्स हैं, है ना, चाहे वो प्लैनेट है, चाहे वो हम और आप हैं, है ना, ये सारा दो चीजें हैं कि यूनिट्स हैं और यूनिट्स स्पेस में है। यूनिट्स के अलावा जो भी कोई जो रियलिटी, बहुत हम लोग, मुझको नहीं लग रहा कि ऐसा इतना, मैंने जिस तरह से हमारा डिस्कशन हुआ है,
दो लोगों के बीच में हम कह रहे हैं कि एयर पार्टिकल है ना, एयर पार्टिकल इटसेल्फ ए यूनिट, मी इटसेल्फ इज ए यूनिट, है ना, सब यूनिट्स ही है। ये यूनिट्स कहां पे है ना, ये यूनिट्स कहां पे है? मेरी तरफ से डेफिनेशन इतना ही है ना। पढ़ दीजिए। There is some blank place unvisible between two units. This space is everywhere and all units are in space and यूनिट्स में भी स्पेस है। हमने चर्चा किया कि सारा जो यूनिट्स है वो मॉलिक्यूल्स है, देयर इज स्पेस, मॉलिक्यूल्स भी एटम है, देयर इज स्पेस, सो स्पेस इज एवरीवेयर एंड इट इज थ्रू द यूनिट्स एंड यूनिट्स आर इन स्पेस, दैट्स इट। फिर क्या है? Summation of all units is equal to space. No, units itself. More than that. Units are particles. Then in that case, why can't we define space as where there is non-existence of units? हाँ जी, Where there is non-existence. where there is non. Your statement we are accepted. You just specify what are the features of space. That is what we are specifying. That is what we are discussing, है ना? हाँ जी, that is what we are doing. Space is something जिसका लिमिट नहीं है। एक बात, space is something in which we can see into it. It doesn't produce any hindrance. कोई रुकावट पैदा नहीं करता है। ये एक प्रॉपर्टी हुआ। Space is something where there is no action in it. वहाँ कोई क्रिया नहीं है। Itself actionless है ना, एक्शनलेस है, इसलिए करता नहीं है, भोगता नहीं है, दृष्टा नहीं है। एक क्लैरिफिकेशन कि एक्शन का क्या मतलब होता है ना। ये पारगामी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पारगामी का मतलब है सारी इकाइयां स्पेस में है और स्पेस सारी इकाई के आर पार है ना। इसको अपन कैसे लाए थे? इसको अपन लाए कि यदि इकाई के होने से स्पेस डिस्प्लेस होता है, इसका मतलब वहां पे क्रिया है, और स्पेस अपने आप में क्रिया शून्य है। स्पेस में ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना कुछ घटाया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। इट रिमेन्स एज इट इज। ये पारगामी का अंग्रेजी शब्द आपके पास है कुछ? Transparent. पारगामी इज नॉट ट्रांसपेरेंट, ओपेक भी नहीं है, ओपेक भी नहीं। एक मिनट, कोशिश करो, कोशिश। Can we draw Venn diagram for this relationship? एक मिनट। पारगिरी में ईथर है, ये है, वो है, दैट समथिंग लाइक। वो देखो, एक मिनट। जब भी हम प्रेजेंट डिस्कशन को किन्हीं पास्ट वर्ड्स के साथ जोड़ के समझना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम, वो नहीं होगा है ना। अब मैं पूछ, हाँ जी प्लीज। ऑल यूनिट्स आर इन स्पेस एंड स्पेस इज थ्रू द यूनिट्स, दैट इज पारगामी। वर्ड आप ढूंढ लो। नहीं सर, नहीं एक मिनट सर, जैसे वेंकटरमणी सर ने बोला है कि एक्सियम, पहले एक्सियम डिफाइन करना चाहिए। अभी सपोज कि मुझे साइंस पढ़ना है, तो साइंस में मुझे क्या क्या आना चाहिए? बायोलॉजी आएगा, केमिस्ट्री आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, मैं इकोनॉमिक्स वहां नहीं आ सकता हूं। ये जो है डिफाइन होने के बाद में फिर ये सबके हमारे दिमाग में आ जाएगा कि आप जो बोलना चाहते हैं या तो आपकी परिभाषा क्या है। ये थोड़ा कंफ्यूजन में हो रहा है अभी तक। एक तो मैं थोड़ा सा एक मिनट हाँ जी प्लीज, हाँ जी बताइए। वो तीनों शब्द जरा पूरा कीजिए। निरपेक्ष ऊर्जा, साम्य ऊर्जा, तो थोड़ा कुछ उसमें। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद अपन ठीक चल पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कन्वे होगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी ठीक। तो एक तो ये क्लियर हो गया, क्रिया शून्य इज क्लियर, पारगामी क्लियर। पूर्ण का मतलब है कुछ उसमें जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, इट रिमेन्स एज इट इज। जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, इसी को पूर्ण का मतलब है स्थिति पूर्ण। उसका जो स्थिति है, उसका जो होना है, वो अपने आप में है, कुछ नहीं कर सकते, है, नॉट चेंजेबल। आराम। और कोई प्लैनेट निर्माण होने की संभावना नहीं
स्पेस इज इनएक्टिव, स्पेस में कोई एक्शन नहीं है, यूनिट्स तो स्पेस में है ही है। और एडिशन नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? जो भाई इतने सारे हुए होंगे तो और क्यों नहीं हो पाएंगे? पूर्ण का मतलब और स्पेस अपने आप में, हाँ, स्पेस का होना अपने आप में एक स्थिति है, उसमें हम कुछ एडिशन या डिलीशन नहीं कर सकते। स्पेस का ये टुकड़ा निकाला, ऐसा कुछ नहीं। हम कह रहे हैं कि क्रिया शून्य है। क्रिया शून्य का होने का मतलब ही है कि वहां कुछ नहीं, वहां कोई हिलना डुलना नहीं है, कोई गति तरंग दबाव नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, पारदर्शी है, पारगामी है, थ्रू द यूनिट्स, है ना। और इकाई और यूनिट के कोएग्जिस्टेंस में सारी इकाइयां ऊर्जित हैं, एनर्जाइज्ड हैं। सो वी कम टू ए कंक्लूजन दैट स्पेस इटसेल्फ इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, जबकि खुद में उसमें कोई क्रियाशीलता नहीं है। ठीक है, अब एक मिनट। अब फाइनल क्वेश्चन ये, फाइनल जो बात कहीं हमारी अटकती है, जो वैदेही मैडम बोल रही हैं कि स्वयं में क्रिया शून्य होने के बावजूद वो क्रिया का ऊर्जा कैसे है ना, इतनी बात हमारी। ये सब कहां से आ रहा है? क्योंकि अभी तक हमारा ऊर्जा से जो हमारा स्वीकृति है ना, कंडीशनिंग है कि ऊर्जा का मतलब ही क्रिया है। तो ये कह रहे हैं कि ये ऑल टुगेदर जिस ऊर्जा के बारे में अभी तक हमने सुना है, पढ़ा है, ये वो ऊर्जा नहीं है ना। ये जैसा है, ये जैसी रियलिटी है, उसको वैसा ही हमको देखना होगा। जो बात आपके सामने रखी जा रही है वो फिनोमिना एग्जिस्टेंस में ऐसे ही दिखता है कि नहीं, एक एक करके अपन देख लें। स्पेस में कोई क्रिया दिखती है क्या? नहीं दिखती है। स्पेस में कोई क्रिया दिखता है? नहीं दिखता है, इसलिए कहा भाई क्रिया शून्य है। एक बात पूरा हो गया। एक तो ये बात आ रही थी कि ये चारों अवस्थाएं कुछ एक्सियम की जैसे अपन बात कर रहे थे, तो मैं हो सकता है ये चारों की चारों अवस्थाएं, है ना, स्पेस में है, यूनिट्स हैं और स्पेस है। एक तो बात, इतनी बात आई। तो एक तो यदि एक तो जो कंफ्यूजिंग जगह बन रही है कि ऊर्जा के नाम से हमारा अपना एक पहले से एक रिजर्वेशन है, ऊर्जा के प्रति हमारी अपनी कुछ मान्यताएं हैं। तो एक तो ये कहा कि इसको, ये जो ऊर्जा शब्द आया, एक बार एक एक घटना को मैं एक बार पूरा कर लेता हूं, है ना, जैसा है उसको आने दीजिए, है ना। और हमारे पास अपना वो अधिकार तो रिजर्व है ही है ना। तो ऐसा कोई मेरा आग्रह नहीं है कि इसको एज इट इज स्वीकार किया जाए। और अभी अनुभव संपन्न व्यक्ति के रूप में बाबा हमारे बीच में मौजूद हैं, अपन बैठ के फिर और बात कर ही सकते हैं, है ना। तो एक तो मेरे को लगता है कि स्पेस दो शब्दों के साथ कुछ, एक तो स्पेस के साथ भी हमारे अपने कुछ हो सकता है, स्पेस शब्द के साथ भी कुछ मीनिंग पहले से अटैच है। दूसरा, ऊर्जा शब्द के साथ कुछ मीनिंग पहले से जुड़ा हुआ है। ये दो शब्दों को यूज करके शायद कुछ थोड़ा सा, एक बार वापस एक बार अब मैं बोलते जाता हूं, है ना। और एग्जिस्टेंस सीधा सीधा बिना किसी दूसरे कोई भी बात को बीच में लाए, आप हैं, समझना हमको आपको ही है, जीना हमको आपको ही है ना। बाकी सारी फिलॉसफीज हमारे समझने में कोई सहायता हो सकती है ना। होने के ऊपर हम लोग चर्चा किए। होने के रूप में हमने देखा कि यूनिट्स हैं, ठीक। एक बात, सारे यूनिट्स, हमने कहा कि यूनिट्स कहां पे हैं? स्पेस में है, और स्पेस में सारा यूनिट्स मूव करता है। और इन यूनिट्स का जो इंटर रिलेशन है वो हमने पहचाना कि आपस में कॉम्प्लीमेंटेरियनशिप है ना। चारों अवस्थाएं आपस में पूरक हैं, मानव भी पूरक होना चाहता है, और उसके लिए समझने की एक प्रोसेस की बात की। तो वो रियलिटी जिसमें सारी यूनिट्स हैं, है ना, उस रियलिटी को एक नाम हो सकता है, स्पेस शब्द के साथ बहुत सारी थियरीज पहले से अटैच होकर चल रही हैं, उसको एक नाम दे दिया एक्स।
ठीक, ये कैसा है? सारी यूनिट्स एक रियलिटी में है और किसी यूनिट का बनना, बिगड़ना, है ना, रूप परिवर्तन जिसको हम कह रहे हैं, अंततः वो अपने किसी एटॉमिक फॉर्म में बना ही रहता है। और कहाँ रहता है? स्पेस में ही रहता है। इसका फैलाव कहाँ तक है? तो कहा कि भाई असीम है, उसकी बाउंड्रीज अपन नहीं देख पाते हैं, है ना, इनफाइनाइट है। ये स्पेस में हम सारी यूनिट्स को देख पाते हैं, तो उसकी एक प्रॉपर्टी कहा कि भाई ये पारदर्शी है, एक चीज पता चली। तीसरा, हमारे पास ये क्लियर स्थिति हमको समझ में आती है कि स्पेस हो और यूनिट्स ना हो। केवल स्पेस में किसी क्रिया का प्रमाण, किसी क्रिया के होने का पता हमको नहीं चलता। सारा क्रिया का पता हमको यूनिट में चलता है, सारी क्रिया जो हमको यूनिट में दिखाई देती है। तो हमने कहा कि स्पेस अपने आप में, स्पेस इटसेल्फ इज इनएक्टिव, क्या है ना, एक्शन, वहां क्रिया नहीं है, एक्शनलेस। क्रिया का मतलब गति, तरंग और दबाव स्पेस इटसेल्फ में नहीं, ये एक्स इटसेल्फ में नहीं है। इसका फैलाव असीम है, इसलिए एक शब्द कहा भाई ये व्यापक है, और एक और कहा कि असीम अवकाश भी एक यूज करते हैं, है ना, असीम अवकाश, असीम आकाश, अंतरिक्ष। फिर अपन चर्चा किए कि क्रिया शून्य का मतलब वो अपने आप में कोई एक्शन नहीं है, तो कर्ता भोक्ता दृष्टा नहीं है। स्पेस को काट नहीं सकते, है ना, स्पेस का टुकड़ा कर दें, है ना, या स्पेस को हिला डुला दें, स्पेस जैसा है, ये जो रियलिटी है जैसी है ये वैसी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एक नाम दिया कि ये स्थिति पूर्ण है, इसकी जो स्थिति है वो अपने आप में पूर्ण है। जैसे सारी इकाइयों की स्थिति बदलती रहती है, एक परमाणु से लेकर जितनी भी सारी चारों अवस्थाओं की सारी यूनिट्स हैं ये बदलती रहती हैं। एक परमाणु का किन्हीं पार्टिकल्स को लेना और छोड़ना, है ना, और किसी इकाई का होना और कल नहीं होना, माने उसका रूप परिवर्तन हो जाना, सारी चीजें बदल रही हैं। यहाँ कुछ भी बदलता नहीं है, ये जैसा है वैसा है। इसलिए इसको एक कहा कि भाई ये स्थिति अपने आप में पूर्ण है। फिर एक बात आई कि सारी इकाइयां क्रियाशील हैं। इकाई और इस एक्स या ये असीम अवकाश के अलावा सारी इकाइयां असीम अवकाश में है, आकाश में है, तो उसके अलावा कोई दूसरी, कोई तीसरी चीज है नहीं। तो सारी इकाइयां स्पेस और यूनिट के कोएग्जिस्टेंस में सारी इकाइयां क्रियाशील हैं। क्रियाशील को बोले कि कहीं ना कहीं कोई बल है और उसमें ऊर्जा संपन्नता है। तो सारी इकाइयों की क्रियाशीलता का आधार, सारी इकाइयों में परस्पर जो पूरकता है, तो कोई चीज है जो उसका आधार जो है कॉमन है। सारी इकाइयों को जो कॉमन चीज प्राप्त है वो ये असीम अवकाश, व्यापक सत्ता, यही रियलिटी है। इस सेंस में कहा कि भाई ये स्वयं में ऊर्जा का आधार है, समस्त इकाइयों में क्रियाओं का आधार है। इसको निरपेक्ष कहने की बजाय हम कहें मूल ऊर्जा। ये ऊर्जा का, इस मूल ऊर्जा से, है ना, इस मूल ऊर्जा का क्या मतलब है कि एक परमाणु के भीतर पार्टिकल के ऊर्जित होने का, उसकी जो क्रियाशीलता का जो आधार है, ये मूल ऊर्जा है। एक बार किसी इकाई का, फिर से एक पार्टिकल, एक एटम के भीतर पार्टिकल का कुल मिला के एटम पार्टिकल से मिलके बना, और दो पार्टिकल एक दूसरे को पहचानते हैं और एटम के रूप में ऑर्गेनाइज होते हैं। ये जो ऊर्जा है जिसके कारण कि इनका
क्रियाशील होना, उस क्रियाशीलता में एक दूसरे को पहचानना, उस पहचानने के आधार पर एटम के रूप में ऑर्गेनाइज होना, इसको कहा मूल ऊर्जा। मूल ऊर्जा, ये मूल ऊर्जा अपरिवर्तनीय है, ये चेंज नहीं होता। तो स्पेस स्वयं में क्रिया शून्य होते हुए, स्पेस स्वयं में क्रिया शून्य होते हुए समस्त क्रियाओं में, समस्त सारी यूनिट्स में क्रियाशीलता का आधार है ना। और इससे एक इन्फरेंस ड्रॉ किया कि मूल ऊर्जा का आधार स्पेस स्वयं है ना। एक बात ये कही और फिर हम लौट के आए है ना। हमने कहा कि सारी कुल मिला के 3 वास्तविकता पूरा एग्जिस्टेंस में है ना। जड़ परमाणु के बारे में हम काफी पहले से जानते हैं है ना, विज्ञान के माध्यम से। यह जीवन परमाणु की कुछ चर्चा हम लोगों ने की है। जीवन में 10 क्रियाओं की चर्चा हम लोगों ने की और उसमें 4.5 क्रिया की चर्चा भ्रमित स्थिति में की और 5.5 क्रिया की चर्चा हम लोगों ने जागृत स्थिति में की है ना। तो जीवन में 10 क्रियाओं का होना, भ्रमवश 4.5 क्रिया में जीना और जागृतिवश 10 की 10 क्रिया का अभिव्यक्त होना और मानव के रूप में जी पाना, ये कुछ चर्चा हम लोगों ने की। 3 क्रिया, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया है ना। तो मूल रूप में एक परमाणु में जो क्रियाशीलता है, एक परमाणु में जो क्रियाशीलता है कि पार्टिकल आपस में एटम बनाता है और एटम आपस में मॉलिक्यूल के रूप में ऑर्गेनाइज होता है, ये जो मूल ऊर्जा का आधार है। और जीवन में भी जो आशा, विचार, इच्छा है ना, समझ, अनुभव, जो भी हमने 10 क्रियाओं की बात की, वो मूल ऊर्जा का मैनिफेस्टेशन जड़ परमाणु और जीवन परमाणु के रूप में है। जड़ परमाणु उसी ऊर्जा को पाके जिस प्रकार अभिव्यक्त होता है, एक्सप्रेस होता है, वो हमारे सामने है। जीवन ऊर्जा भी उसी व्यापक सत्ता में है, उसी एक्स में है। जीवन किस तरह से एक्सप्रेस होता है, तो सभी को समान ऊर्जा प्राप्त है, मूल ऊर्जा सभी के लिए सेम है। वो इकाई अपनी पात्रता के अनुसार एक्सप्रेशन में है। तो एक पत्थर भी उसी मूल ऊर्जा में है, एक पेड़ पौधा भी उसी एक्स में है, एक पशु पक्षी भी उसी एक्स में है, मानव भी उसी एक्स में है। ये सारी इकाइयों की जो पात्रता है, पात्रता मैंने उसकी ग्रहण करने की क्षमता, उसका जिस तरह से वो एनर्जाइज होता है, उसका मैकेनिज्म डिफरेंट है। पत्थर एक अलग तरह से एनर्जाइज्ड है ना। पेड़ पौधा कुछ अलग तरह से एनर्जाइज्ड है, जिसमें कि सांस लेने की क्रिया, कोशिका में सांस लेने की क्रिया हमको दिखाई देती है। पशु जीवन में मानना, मानने के आधार पर पहचानना, पहचानने के आधार पर निर्वाह करना, ऐसा दिखाई देता है। मानव में जानने की संभावना और जानने के आधार पर पहचानना, निर्वाह करना दिखाई देता है ना। तो हर इकाई कुल मिला के भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया है ना। और इन तीनों क्रियाओं के आधार पर 4 अवस्थाएं हमको अपने सामने देखने को मिलती हैं। इन चारों अवस्थाओं को एक नाम दिया ऐश्वर्य। इस सारे ऐश्वर्य का आधार 3 क्रिया, इन तीनों क्रियाओं का आधार मूल ऊर्जा, इसलिए एक नाम ईश्वर के रूप में हम लोगों ने इस रूप में पहचाना। ठीक, ये एक पार्ट हुआ। अब यहां जो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा हमको परेशान करता है कि ये एक्स स्वयं में क्रिया शून्य होने के बावजूद भी ऊर्जा कैसे है। एक क्वेश्चन तो ये मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन है ना, और तो कोई चीज अपने को परेशान नहीं कर रही है ना। तो अब ये जो बात है, तो अब जो हमारे बीच में चर्चा हो रही है ना, ये केवल किसी होने की सूचना है। ठीक, इस जगह में अध्ययन की आवश्यकता, और हम यदि वास्तविकता ऐसी नहीं है तो कुछ और होगी। इतना ही हो सकता है कि वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता जैसी भी है, समझने वाला मैं ही हूं, समझना मेरी जरूरत है। तो एक वास्तविकता ऐसी है, ये प्रपोजिशन आपके सामने रखा गया। ठीक, इसको जांचना, ये वो चीज है जिसका जांचना तुरंत निकल के आ जाएगा, क्योंकि अभी तक ऊर्जा के साथ हमारा जो
स्वीकृतियां हैं वो यह है कि ऊर्जा मन है वो तो खुद में क्रियाशील होते हैं। तो यहां वो बिल्कुल एक दूसरे प्रकार की चीज है जहां उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, है ना। वो इस ऊर्जा से ये ऊर्जा के साथ हम जोड़ के इसको नहीं देख सकते। इसको एक एक्स के रूप में आप, यदि आपको बाकी कहीं शब्द परेशान करते हैं तो इसको हम एक्स के रूप में देख लें, है ना। और ये अपने आप में एक अनुभूति का मामला है, एक थोड़ा सा हमारे भीतर इंटरनलाइज होने का मामला है। अभी इसको इस पॉइंट पे थोड़ा सा रोक के थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। इस पॉइंट को अभी आपके को मैं रख रहा हूं कि स्वयं में क्रिया शून्य होने के बावजूद ये ऊर्जा कैसे है ना। कल सुबह बाबा के साथ बैठेंगे, इस क्वेश्चन को उनके साथ रख लेंगे, ठीक है। तो हो सकता है अपन कहीं और कोई चीज हमको क्लिक कर जाए और हमारी स्वीकृतियों में कुछ आ जाए। इसका जो और छोटा सा पार्ट है वो ये कि मानव, है ना। मानव क्या चीज है? शरीर, जब जीवन किसी मानव शरीर को चलाता है तो हम उसको मानव के रूप में पहचानते हैं। मानव के रूप में पहचाना, टाइम शॉर्ट है अपने पास तो मैं ब्रीफ में इसको रख रहा हूं ताकि एक ग्लिम्स हमको आ जाए। इसकी डिटेल्ड स्टडी बुक्स में अवेलेबल है, चार्ट्स में अवेलेबल है। मानव के रूप में देखा तो हम देखते हैं कि दो तरह का, एक तो लेना, मैं बहुत लेमन लैंग्वेज यूज कर रहा हूं कि हम क्या परिवार, समाज, व्यवस्था, जो भी हम कहें, प्रकृति, उससे क्या हम लेते हैं और क्या हम कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारा व्यवस्था में भागीदारी, क्या हमने लिया, क्या हमारा व्यवस्था में भागीदारी है। इसको हम देखें तो हमको पता चलता है कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने एक प्रकार के मानव ऐसे हैं जो अपनी आवश्यकताओं के लिए स्वयं को दीनहीन मानते हैं। आई एम नॉट एबल टू फुलफिल माई नीड्स, सो आई हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन, है ना। अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी दूसरे पे निर्भरता होना और बहुत एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ में जीना, है ना। इसको कहें एक प्रकार का मानव। इसका कंट्रीब्यूशन व्यवस्था में क्या है, इस पूरी चेन में इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? होगा, कुछ होगा इसका कंट्रीब्यूशन। जो खुद अपनी आवश्यकता के लिए अपने आप को इनसफिशिएंट मानता है और किसी तरह दूसरों पर निर्भर होकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश, means that partnership, sometimes I may be short, sometimes the other element may be short, है ना। Because it requires the simultaneous application of several energies or several things with the means, with the physical way that we are looking with the sadhanas of our hands. It's not possible to do it, though we are capable of doing it. At a different point in time, probably I may be able to do another skill, but at a particular point in time, I cannot synchronize all these things of my skills. ऐसा नहीं बोल, ऐसा नहीं। It is not inferiority complex. चलिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। ये कह रहा हूं कि एक परिवार में सभी लोग आपस में प्यार से रहें, ये हमारी जरूरत है। एक परिवार अपनी फिजिकल नीड्स के लिए ये महसूस कर सके कि जितनी हमारी ज़रूरतें हैं उससे अधिक उपलब्ध है या पर्याप्त है, सफिशिएंट है, ये हमारी ज़रूरत है ना। ऐसा एक आदमी, है ना, ऐसी स्थिति को एक व्यक्ति नहीं फील कर पाता है। वो अपनी नीड्स के लिए अपने आप को सफिशिएंट फील नहीं कर पाता है ना। जब सफिशिएंट फील नहीं कर पाता है तो अपने आप को कमजोर पाता है ना। वो शब्द से आपको परेशानी है तो उसको मत यूज करिए, क्योंकि किन्हीं शब्दों से हमारा एक कुछ अलग मीनिंग है। कुल मिला के बहुत मोटे रूप में कहें, व्यवस्था में उसका योगदान, बल्कि कभी कभी अव्यवस्था में योगदान किसी मात्रा में कम ज्यादा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आवश्यकता के लिए, आवश्यकताएं उनकी और ज्यादा हैं, बहुत सारा चाहिए, और वो अपनी आवश्यकता को मैनिपुलेट करके पूरा करते हैं, है ना। वो
बल से हो सकता है, फिजिकली, है ना, कलम से हो सकता है, व्हाइट कॉलर क्राइम, या और जो भी कुछ हो सकता है। तो बेसिकली इसका व्यवस्था में योगदान, बल्कि व्यवस्था में, अव्यवस्था में योगदान भरपूर है ना। ठीक, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने आप को सफिशिएंट फील करते हैं, है ना। आपस में परिवार में स्नेहपूर्वक कैसे जीना, समाधान पूर्वक कैसे जीना, समृद्धि पूर्वक कैसे जीना, और परिवार में ऐसा जी पाते हैं, तो एक इनका योगदान परिवार के ढंग से कम प्रमाणित हुआ। कुछ लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, है ना, मानवीय व्यवस्था जिसको अपन कह रहे हैं, द राइट एजुकेशन सिस्टम एंड ऑल सिस्टम्स, है ना, वो उसमें कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो व्यवस्था में इनका योगदान, इनका कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा, है ना। कुछ लोग इनकी नीड्स, जैसे ही ये पार्ट बढ़ते जाता है तो नीड्स आदमी की स्वयं स्फूर्त और कम होती जाती है, नीड्स और कम होती है, और सार्वभौम व्यवस्था, यूनिवर्सल ऑर्डर में इनका कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा हो जाता है ना। एक बहुत जनरलाइज्ड कमेंट, है ना, इस तरह से मानव का फैलाव। ये अपने आप को इनसफिशिएंट फील करता है और किसी तरह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो हमेशा लगता है कि पूरा नहीं हो रहा है ना, और ये आवश्यकताओं को और ज़्यादा चाहिए ऐसा महसूस करता है और मैनिपुलेट करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इसको बोलते हैं हीनता प्रधान, इसको बोलते हैं क्रूरता प्रधान। ठीक, इस मानव को बोले पशु मानव, इस मानव को बोले राक्षस मानव, इस मानव को डेविल ह्यूमन बीइंग, मानव, देव मानव, डिवाइन ह्यूमन बीइंग्स। ऐसी अभी भी हमारी स्वीकृतियां है ना। बेसिकली पशु मानव बोलने से इतना ही मतलब है कि एनिमल इंस्टिंक्ट, इतना ही मतलब है। डेविल इंस्टिंक्ट माने क्वालिटी वही है ना, ये झेलते झेलते अब दूसरों को झिलाने लगता है। अब हमको ये भी समझ में आता है कि शरीर तो कंटिन्यूअस नहीं है ना। शरीर की एक निश्चित आयु है कि अच्छा काम करें बुरा काम करें, 100 साल, 110 साल, 80 साल शरीर पूरा हो गया। तो अब हमको ये समझ में आता है कि मानव क्या है, एक जीवन है, शरीर को चलाता है। क्यों चलाता है? निरंतर सुख के लिए, समाधान से सुखी होता है, इसलिए चलाता है। और कितना हमारे भीतर समाधान को पाने का मामला है? स्पेस वॉर, है ना, अभी अपना स्पेस वॉर हो गया था। तो कुल मिला के ये इस बात की सूचना है कि मानव में समझने की प्यास है, समझने की कैपेबिलिटी है। समझ में आ जाए तो उसका प्रमाण जीना ही है। जीना स्वयं में, परिवार में, समाज में और व्यवस्था में, और मानव परंपरा के रूप में कहें अखंड समाज जो अधिकतम हो सकता, अनडिवाइडेड सोसाइटी एंड यूनिवर्सल ऑर्डर। तो एक बात समझ में आती है कि जीवन तो है ही। अब क्या हो गया? अब शरीर नहीं है, जीवन है, शरीर चलाता है, तो उसको हमने कहा जन्म। शरीर नहीं रहा, उसको कहा मृत्यु। कुल मिला के जीवन तो है ही है। शरीर चलाते समय भी जीवन ही है, शरीर नहीं है तब भी जीवन ही है। ऐसा आदमी, है ना, ये पहले की दो कैटेगरी
ये कैसा है? कंफ्यूज्ड है, माने भ्रमित है कि सॉल्यूशन के साथ है? भ्रमित है। भ्रमित क्या चीज है? शरीर है कि जीवन है? जीवन है। तो बेसिकली ये एक भ्रमित जीवन ही रहता है। भ्रमित जीवन मानव के रूप में क्या करता है? अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण खुद परेशान रहता है, दूसरों को परेशान करता है, डिसीजन नहीं ले पाता है। और शरीर छूटने के बाद भी वही कार्यक्रम कम ज्यादा किसी रूप में, है ना? शरीर नहीं है, शरीर नहीं होने की सीमा में जो हो सकता है सो होता है। और ये जीवन कैसे है? है ना? जागृत जीवन, एनलाइटेंड सोल नाम हमने एक दिया, है ना? तो बेसिकली अब समझ में आया, सोल जो है, आत्मा जो है, जीवन में 10 क्रियाओं में से एक क्रिया, अनुभव क्रिया, उस अनुभव क्रिया को एक नाम दिया आत्मा, है ना? तो मूल में हर मानव में जो चीज जैसी है उसको वैसा समझने का जो कॉम्पिटेंस है, जो क्षमता है, वो अनुभव क्रिया में ही है ना? कल्पनाशीलता से सच्चाई पकड़ में नहीं आती है, तर्क केवल सच्चाई की तरफ इशारा करता है ना? हमारी सारी चर्चा अभी कल्पनाशीलता के दायरे में है। ये जीवन, क्योंकि इसका बिहेवियर मानव के रूप में भी स्वयं दुखी रहना, दूसरों को दुखी करना, जीवन रूप में भी कुछ इसी तरह के बिहेवियर के कारण के आधार पे इन्हीं को भूत प्रेत बोलते हैं। भ्रमित जीवन ही भूत प्रेत है। जीवन है ही, जीवन या तो भ्रमित होगा, जीवन या तो जागृत होगा। भ्रमित जीवन ही भूत प्रेत है और जागृत जीवन ही देवी देवता, है ना? और अब एक शब्द आता है भगवान, है ना? मैं इसको कहीं अभी प्लेस नहीं कर रहा हूं, केवल शब्द लिखा है। तो एक शब्द हमारे पास ईश्वर था। ईश्वर के बारे जिस तरह की मान्यताएं हमारे बीच में स्थापित हैं, वो पहले से स्थापित है कि वो कण कण में है। तो ईश्वर शब्द एक्स की जगह में रखना उचित लगता है, इससे मैच करता है। एक शब्द हमारे पास भगवान है। भगवान शब्द को देखते हैं तो इससे कर्ता का भाव आता है, जैसे पहलवान, है ना? और क्या? बुद्धिवान, कोचवान, रूपवान, बलवान, है ना? तो ये कर्ता का भाव देता है। इससे समझ में आया कि ये इसको इधर रखना तो मुश्किल है, क्योंकि इधर तो कोई क्रिया नहीं है। क्या चीज है? एक शब्द के ढंग से कहें, जो अपने पूरे भाग का, पूरे हिस्से का मालिक हो गया हो। पूरा हिस्सा, पार्ट क्या है? एक मानव का पूरा हिस्सा, एक मानव का पूरा हिस्सा क्या चीज है? इस प्रकृति में उसका पूरा हिस्सा कितना है? उसकी उपयोगिता। क्या उपयोगिता? संपूर्ण को समझना और संपूर्ण के साथ जी पाना, जिसको कहा प्रेम, है ना? हाईएस्ट लेवल ऑफ, है ना? जिसको कहा डिवाइन कॉन्शियसनेस, है ना? तो बेसिकली भाग, पूरा भाग मानव का क्या है? अभी मेरे का पूरा हिस्सा नहीं मिला है। जब शरीर मानता हूं तो प्रॉपर्टी को, इन सारी चीजों को अपना हिस्सा मानता हूं और उसके लिए मैं जो भी करता हूं। जब मानव के रूप में पहचान पाता हूं तो क्या चीज है? जीवन और शरीर, दो चीज का होना मानव। शरीर की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान, और मेरी आवश्यकता समाधान, है ना? और अक्षय बल शक्ति से संपन्न हूं, इसलिए संपूर्ण को समझने से कम में तृप्त नहीं होता हूं, जब तक मैं मेरे पूरे पोटेंशियल को इन्वेस्ट करके, है ना,
तो अपने पूरे संपूर्ण अपनी असीम क्षमता को, समझने की क्षमता को इन्वेस्ट करता हूं, तो कितना समझ के चुप होऊंगा या कितना समझने से मेरी तृप्ति होगी? संपूर्ण को समझना। तो ऐसे मानव जिन्होंने संपूर्ण को समझकर संपूर्ण जीने की जगह में, तो ऐसे को हम यहां रख सकते हैं, दिव्य मानव। तो बेसिकली दिव्यता की जगह में हम इसको रख सकते हैं। तो एक ईश्वर शब्द को यहां रखना, उसका जो भी उसके साथ जो हमारा स्वीकृतियां हैं शब्दों मीनिंग का, वो इधर रखना ठीक लगता है। अब यहां पे ये करता है, मानव ही करता है, मूल में जीवन ही करता है, यही भोगता है, यही समझने वाला है। तो संपूर्ण को समझने का, जिसको हमने कहा सर्वज्ञ, संपूर्ण को समझने की जो ताकत है वो किसके पास है? मानव के पास। तो मानव ही सर्वज्ञ हो सकता है, होना तो चाहता ही है ना? तो मानव ही संपूर्ण को समझने वाला है, मानव में ही कर्ता पद है ना? और मानव ही उसको भोगता है। तो इस सेंस में यहां इस शब्द को रखना ज्यादा एप्रोप्रिएट लगता है ना? तो ये एक बात हो गई। अब ये पूरा कैनवस हमारे सामने है ना? इसमें एक बात होने के लिए कि मनुष्य का जो लक्ष्य है वो भगवान बनना है। हाँ, इसमें से जो बात निकली, भगवान का अर्थ समझ के भगवान बनना है, वही। इसमें से अब जो एक यहां पे एक इंटरेस्टिंग सूत्र आता है, मैं उसको मूल ऊर्जा कह रहा हूं। अभी ईश्वर भी नाम नहीं दे रहा हूं, है ना? मूल ऊर्जा अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है। अब ये अपने से कनेक्ट हो रहा है। मूल ऊर्जा का मैनिफेस्टेशन अनुभव काल में आनंद के रूप में है। विचार काल में समाधान ब्रैकेट में सुख के रूप में है। विचार काल में मूल ऊर्जा सुख के रूप में प्राप्त है। और आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है। ठीक? और व्यवसाय काल में नियम के रूप में प्राप्त है। थोड़ा सा क्या हो गया, अपना डबल शिविर चल रहा है। अभी सूचना वाला शिविर के साथ साथ अध्ययन शिविर भी चल रहा है। अभी अनुभव, अभी आर पार, है ना? ठीक भी है, होता तो ऐसे ही है ना? और यही हमारा तो शिविर से 7 दिन में समझने के प्रोसेस का एंड नहीं होता है। यहां से हम शुरू होते हैं, है ना? यहां से हम शुरू होते हैं। अब से पहले भी, है ना? सूखा मतलब दुख भी वही स्थिति में होता है। दुख होता है। हाँ, समाधान का ना होना ही दुख। हाँ। तो इसलिए कल की चर्चा में आप नहीं थे। कल की चर्चा में जो कुल मिला के बात आई कि एग्जिस्टेंस में कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, वो सब कुछ नियम पूर्ण है। प्रकृति में सब कुछ नियम पूर्ण है। ठीक? वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, है ना? धरती घूमते घूमते कंफ्यूज हो गया कि मेरी दिशा क्या थी, मेरा एंगल क्या था,
ऐसा उधर नहीं है। आम का पेड़ बीच में कंफ्यूज हो गया और बीच में जो है नीम का फल देने लगा, ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। तो प्रकृति में कंफ्यूजन नहीं है, केवल मानव प्रकृति में जैसा है वैसा देखने तक पहुंच सके तब तक हम बहुत सारी चीजों को कुछ कह रहे हैं, है ना। जब जैसा है वैसा देख लेंगे उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। तो नियम का डेफिनेशन ही है कि जो चेंज नहीं होता है ना, जो चेंज नहीं होता है, अपरिवर्तनीय है। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि जब हम जैसा है वैसा समझ पाते हैं तो पता चलता है कि पूरकता है, कॉम्प्लीमेंटेरियनशिप है। और जब इसको ऐसा समझने की बजाय कुछ अपनी तरफ से मान लेते हैं, इसका नाम मान लेते हैं, तो जी नहीं पाते हैं, क्योंकि सच्चाई कुछ और है, मैंने कुछ और मान लिया है। ये हमारे बीच में दुख का कारण है। तो दुख जो है उसका अस्तित्व नहीं है, मेरी समझने की यात्रा के बीच में ना, जो मैं समझ तक नहीं पहुंचा हूं उसकी सूचना है। इतनी बात। कल ये काफी चर्चाएं हुई हैं, आप नहीं थे। देखिए अब एक इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है कि व्यवसाय काल का मतलब है वर्क एंड बिहेवियर, जो हम जीते हैं, है ना। तो पूरा का पूरा पदार्थ में नियम प्रमाणित है। ये जो एक लोहे के एटम का एक दूसरे को पहचानना, उसके हिसाब से पूरा काम करना, तो पदार्थ अवस्था में नियम प्रमाणित है। प्राण अवस्था में एक नियम का और मैनिफेस्टेशन नियंत्रण के रूप में दिखता है कि हर पौधे का, हर उसका आचरण बिल्कुल निश्चित है। और जब हम जीव अवस्था में जाते हैं तो नियम तो है ही, नियंत्रण तो है ही, जब अगला बोलते हैं तो पहले के दोनों उसमें शामिल हैं। तो पूरा पशु पक्षियों की संख्या कितनी होगी ये भी प्रकृति विधि से नियंत्रित है, हमको उनका फैमिली प्लानिंग नहीं करना पड़ता है। किसी ग्रह पे, है ना, कितनी स्पेसीज हैं, उनकी जनसंख्या कितनी होगी, यदि आदमी डिस्टर्ब नहीं करे तो वो अपने ढंग से नेचुरली कंट्रोल्ड है ना, संतुलित है। तो पदार्थ अवस्था में नियम प्रमाणित है, प्राण अवस्था में नियंत्रण प्रमाणित है, जीव अवस्था में संतुलन प्रमाणित है, मानव में, परिवार में न्याय प्रमाणित है ना, और व्यवस्था के अर्थ में धर्म प्रमाणित है, एंड एज ए होल सत्य प्रमाणित है। ये एक ऊर्जा में अलग अलग इकाइयां, जो नरसिम्हन जी कुछ बीच में कहने की कोशिश कर रहे थे कि मूल ऊर्जा सेम है, एक्स, है ना, जिसको व्यापक कहा, असीम कहा, पारदर्शी, पारगामी कहा, और सारी इकाइयां उसी मूल ऊर्जा में है। सो बीइंग एनर्जाइज्ड, उन सब का बिहेवियर अलग अलग अवस्था के अनुसार उसका मैनिफेस्टेशन, उसका एक्सप्रेशन अलग अलग इस रूप में हमको दिखाई देता है। इसका मतलब सब व्यवस्था में सभी भावनाओं का नियंत्रण आ जाता है। जब, इसलिए अपन चर्चा किए थे कि जब जैसा है वैसा समझते हैं तो हम नियंत्रित रहते हैं, कुछ और मान लेते हैं तो अधिमूल्यन, अवमूल्यन, अमूल्यन, उसका प्लस माइनस चलता रहता है, बट इट इज देयर। हम अनियंत्रित, रस्सी को सांप मान लेने से जो गड़बड़ होना है होना ही है। एक तरफ हमने कहा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये क्या हो गया, अधिमूल्यन हो गया, है ना। तो अभी भी तो अब घर में झंझट होना है कि नहीं होना है, अब झंझट होना ही है। फिर अगली बार हमने कहा ये पैसा ही सारे झंझट की जड़ है, अब क्या हो गया, अवमूल्यन हो गया। अब भी झंझट होना है, बिना पैसे के चलना नहीं है, तो बिना पैसे के चलना भी नहीं है और पैसा बाप से बड़ा भी नहीं है। सारी साधन का मतलब शरीर को बनाए रखने के लिए और शरीर को गति प्रदान करने के लिए, यह उसका सही मूल्यांकन है, यह उसकी वास्तविक स्थिति है। आप प्रकृति में जीव संतुलन की जो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो ये लोग कहते हैं कि अगर हमने मांस नहीं खाया तो गाय, बैल, मुर्गे, बकरी आदि बहुत बढ़ जाएगी। ऐसी कोई संभावना नहीं है अगर मनुष्य मांस नहीं खाएगा। जितना भी हम खाने के लिए करते हैं उसका प्रोडक्शन हम अलग से करते ही हैं।
मेरे को लगता है अभी मूल थ्योरी आ जाए, एक बार इसका बेस रख दिया, ये सब अध्ययन के फिर बहुत सारे बिंदु निकलेंगे। मानव और समाज में क्या प्रमाणित है वो शायद मिसिंग है यहाँ पे। मानव में 3 चीज, न्याय, मानव और मानव के बीच में न्याय प्रमाणित समझने के आधार पर, जी, और व्यवस्था के अर्थ में धर्म प्रमाणित जी, और संपूर्ण के अर्थ में सत्य प्रमाणित, को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व प्रमाणित होता है ना। जैसे परिवार में न्याय लिखा है, समाज में धर्म होगा, एंड सार्वभौम व्यवस्था एज ए होल, अनडिवाइडेड सोसाइटी एंड यूनिवर्सल ऑर्डर, इसका मतलब सह अस्तित्व प्रमाणित हो गया है ना। फाइनली क्या हो गया, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है, मानव भी समझने के आधार पर तीनों अवस्थाओं के साथ अपनी भागीदारी कर पाता है, और अनडिवाइडेड सोसाइटी एंड यूनिवर्सल ऑर्डर इज द अल्टीमेट आउटकम। ठीक, अब पूरी फिलॉसफी को, पूरी इस सारा एग्जिस्टेंस की समझ को 5 सेंटेंस में कहा। जब पहली बार आदरणीय बाबा जी को अनुभव हुआ तो उन्होंने अपनी पूरी बात को 5 लाइन में कहा है ना। तो वो 5 लाइन देने से काफी ब्रीफ हो जाए, अब ये ब्रीफ होते जाएगा। क्या, एक तो उन्होंने कहा अस्तित्व ही सह अस्तित्व है। एग्जिस्टेंस इज इन द फॉर्म ऑफ को एग्जिस्टेंस 1। इसलिए अकेला नाम का कोई शब्द नहीं होता है, ये केवल हमारी ना समझ पाने की एक स्थिति है। हम किसी से अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि संबंध तो है ही। वी आर रिलेटेड विद ईच एंड एवरीथिंग, समझ में आता है। सो इट इज वननेस, वी ऑल आर इन कॉम्प्लीमेंटेरियनशिप विद ईच अदर। सेकंड, अस्तित्व में विकास क्रम है। There is a continuous process of evolution. Continuous process of evolution. क्या है विकास क्रम? पार्टिकल का मूल ऊर्जा से ऊर्जित होना, एटम के रूप में ऑर्गेनाइज होना, स्टिल दे आर इन एनर्जी। तो मॉलिक्यूल के तो क्या कहा कि मूल ऊर्जा अपने आप में स्थिति पूर्ण है, पूर्ण में किसी इकाई के सबमर्ज्ड होने से उसका व्यवस्था की ओर प्रवृत्ति का होना। यह प्रवृत्ति हर इकाई में दिखाई देती है। प्रवृत्ति, टेंडेंसी हर इकाई में दिखाई देती है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ मिलकर एटम के रूप में ऑर्गेनाइज होना, 2 एटम का मॉलिक्यूल के रूप में ऑर्गेनाइज होना, उनका किसी मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु के रूप में ऑर्गेनाइज होना, और उसके बाद किसी मॉलिक्यूल के साथ एक निश्चित टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी के साथ किसी रासायनिक क्रिया का होना, उसके बाद कोशिकाओं का बनना, कोशिकाओं का प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड ह्यूमन बॉडी के रूप में होना। तो ये जो यहां तक का सारा मामला है, इसको कहा विकास क्रम। अभी फिजिकल लेवल पे बात कर रहे हैं, है ना। मानव के शरीर से लेके पशु पक्षी का शरीर, पेड़ पौधे का शरीर, और जितना भी सारा एटम का जितना भी खेल है ना, वो सारा विकास क्रम। विकास
आ रहा हूं ना, धीरे धीरे आ रहा हूं। विकास क्रम है, विकास है, यहां बिल्कुल विकास का एक डिफरेंट मीनिंग है, एकदम डिफरेंट, है ना। थर्ड सेंटेंस पूरा बोलिएगा। अस्तित्व में विकास है। विकास क्रम शब्द अपना इवोल्यूशन से मिलता है, लेकिन विकास शब्द एकदम डिफरेंट है। विकास का मीनिंग क्या है? अस्तित्व में विकास है। विकास का मतलब है बिल्कुल एक डिफरेंट मीनिंग है। जितने भी फिजिकल एटम्स हैं, इसको कहा गठनशील परमाणु। बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरली चेंजिंग, है ना। उनका जो गठन है, उनका जो स्ट्रक्चर है, वो बदलते रहता है। सो दे आर चेंजिंग। शील मीन्स परिवर्तनशील, उनका गठन बदलते रहता है, परिवर्तनशील है, इसलिए इसको कहा गठनशील परमाणु। जो चैतन्य इकाई है, इसको कहा गठन पूर्ण परमाणु। इसका गठन बदलता नहीं है। परमाणु शब्द से पुराने वाले किसी उसको अभी ना जोड़िएगा, क्योंकि जब भी इधर जोड़ने जाते हैं तो बहुत मुश्किल होना शुरू हो जाता है ना। अभी उसको बीच में मत लाइएगा। चूंकि शिविर में हमारा समय काफी कम रहा, तो मैंने इसको रखा नहीं, है ना। रख दूं, क्योंकि इसके बिना ये जो मन में विचार अटकता है कि इसको गठनशील परमाणु कैसे कह दिया, तो मूल में हम देखें कि पार्टिकल्स का होना, एनर्जाइज्ड होना और व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति का होना, इस सेंस में डिफरेंट एटम्स का बनना, एंड कंटिन्यूअसली दे आर इन सेम मूल ऊर्जा, सो इवोल्यूशन। और एक बात अपने को और पता है कि चाहे गोल्ड का एटम है, चाहे आयरन का एटम है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सेम है ना। अभी जैसे जिसको हम इलेक्ट्रॉन के रूप में कह रहे हैं, इट रिमेन्स द सेम, केवल उसका संख्या और अरेंजमेंट बदल रहा है ना। उसकी नेचर सेम है। तो केवल न्यूक्लियस में कितना है और ऑर्बिट्स में कितना है, उसकी संख्या बदलने के आधार पर कोई लोहे का परमाणु है, कोई गोल्ड का है, कोई किसी और का है। बेसिकली द पार्टिकल इज सेम, है ना। उसी सेंस में कल एक बात उन्होंने बोलते समय कही थी कि जितने भी टिश्यूज हैं, चाहे पैर का टिश्यू है, चाहे आंख का टिश्यू है, चाहे ब्रेन का टिश्यू है, स्ट्रक्चरली दे आर सेम, है ना। क्वालिटेटिवली दे आर सेम। अलग अलग जगह में अलग अलग अरेंजमेंट के कारण आंख का टिश्यू देखने का काम करता है और सारा अपना अपना काम करते हैं, है ना। ये बात कल की चर्चा में भी आई थी। इसी तरह से अस्तित्व में एक घटना, एग्जिस्टेंशियली एक घटना कि गठन पूर्ण परमाणु का होना, है ना। सो बेसिकली एग्जिस्ट, अब इसको अभी अपन एक हाइपोथेसिस माने, है ना, कि इस मूल ऊर्जा में होने के कारण विकास क्रम लगातार और नियति सहज घटना में किस गठनशील परमाणु से गठन पूर्ण एक ऐसी स्थिति जो कि अपने आप में भार मुक्त है और जीने की आशा से युक्त है। एक ऐसी यूनिट जो अपने आप में जीने की आशा से युक्त है और जिसमें 5 अक्षय बल और 5 अक्षय शक्ति
मूल में ये एक, जिसको कहा जाए परमाणु है, एक चीज है ना, इकाई है। जीवन अपने आप में एक इकाई है और उसमें 10 क्रियाओं का होना, भ्रमित रहते समय 4.5 क्रियाओं का होना और जागृत रहते समय 10 क्रियाओं का अभिव्यक्त हो पाना, है ना, ये एक स्थिति। अब थोड़ा सा यहां वापस अपन कनेक्ट कर लें, क्योंकि एक बार ये शरीर को कैसे चलाता है ना, एक बार आपके सामने ब्रीफ में रख देता हूं। नहीं, आदमी है, आदमी जैसा नहीं लगता है? मानव शरीर है ना। जीवन किसी शरीर को, ये सब मेरा देखा हुआ नहीं है ना, ये मेरे पास सूचनाएं हैं, जो जिन्होंने देखा है उन्होंने जैसा एक्सप्लेन किया है, ये मैं आपके सामने वैसा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपकी उस जिज्ञासा की तृप्ति के लिए कि ये चेंज, कोई चीज मिसिंग है ऐसा ना लगे। आपका आगे मन होगा तो अध्ययन कर लेना, है ना। हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली जीवन शरीर की हर प्राण कोशिका से गुजरता है। इस तरह से जिस शरीर को चलाता है उसी के आकार में कार्य करता है। ये तो हो गया फिजिकल बॉडी, जिसको हमने कहा स्थूल शरीर। जीवन जिस शरीर को चलाता है उसके हर प्राण कोशा से हॉरिजेंटली वर्टिकली गुजरता है। इसको कहा जीवन का कार्य गति पथ, उसके काम करने का तरीका। और जो शेप बनी उसको कहा जीवन पुंज। तो ये पुंजाकार हो गया। 1 2 3 4 5 ये निकल गए ना, इसलिए पुंजाकार बोल दिया। इसको बोला सूक्ष्म शरीर, जिसको हम बोलते हैं बोलचाल की भाषा में जीवन, है ना। है ना। बहुत बार हमारे मन में इस तरह का प्रश्न उठता है कि ये आत्मा शरीर में कहाँ रहता है, ये जीवन शरीर में कहाँ रहता है। कभी बोले हृदय में रहता है, कभी मस्तिष्क में रहता है। ऐसी भी बहुत सारी बातें हमको अलग अलग तरह से। तो कुल मिला के अब ये समझ में आता है कि जीवन शरीर में है कि शरीर जीवन में है। तो बेसिकली जीवन शरीर को अपने आप में एनवलप किया हुआ है ना। ये कैसा हो गया, 3 डायमेंशनल हो गया। अब कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हैं। कभी कभी कोई चीज हमको छूती नहीं है और छूने का एहसास होने लगता है। कंप्लीटली टच नहीं करता है और टच का एहसास हमको, टच की फीलिंग हमको आने लगती है। दूसरा, एक और इंटरेस्टिंग आप देखेंगे, जैसे किसी का हाथ कट गया। कौन सा हाथ कटा? फिजिकल। जीवन की स्वीकृति यदि पूरी है तो हाथ की शेप में ये सूक्ष्म शरीर तो बना हुआ है, और जो फील करने वाली चीज है, फाइनली जो फीलिंग लाने वाली चीज है, वो मैं ही हूं, मैं ही फील करता हूं। तो ऐसे आपको कभी आप अब ऐसा इंटरव्यू करके देखिए, बहुत लोग मिलेंगे। इसकी बजाय ज्यादा रियल एग्जांपल है, जैसे पिक्चर में दिखाते हैं हीरो का टांग कट गया, अब उसको होश आ गया है और वो बात करना शुरू कर दिया है, और अब उसने टांग उठाने की कोशिश की है। अब उसको पता चल रहा है कि टांग नहीं है और ये एक्सीडेंट में, दुर्घटना में जा चुकी है।
अब वो चिल्लाना शुरू करता है ना। इसका मतलब उसकी टांग कट चुकी है, वो होश में है, वो अपने लोगों से बात कर रहा है, इसके बाद भी उसका ये एहसास नहीं है कि टांग नहीं है। उसके पास एहसास यही है कि टांग कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट है? क्योंकि ये शरीर फिजिकल वाला कटा है, जीवन तो नहीं कटा है, वो तो कटता नहीं है, वो तो फिजिकल चीज नहीं है। तो पूरा का पूरा एहसास आते रहता है, पूरे होने का एहसास आते रहता है। एक और छोटी सी बात, जैसे ड्राइवर जीप में बैठा है, जीप को पीछे से छुओ तो क्या ड्राइवर को पता चलता है? नहीं चलता है, क्योंकि ड्राइवर केवल सीट पे बैठा है और बाकी हिस्सा केवल फिजिकल है। जीवन जिस तरह से शरीर को चलाता है, ये पूरे शरीर को एनवलप किया हुआ है, हर प्राण कोशा से गुजरता है। इसलिए बिना हाथ लगाए इवन आप महसूस कीजिए, पिन पॉइंटेडली शरीर के किसी भी हिस्से को आप पिन पॉइंटेडली फील कर पाते हैं, किसी भी हिस्से को। तो पूरा शरीर जीवंत बना हुआ है, पूरा का पूरा शरीर जीवंत बना हुआ है। एक और छोटा सा एक्सपीरियंस, कभी ऊंचाई से नीचे आने वाला एक्सपीरियंस, जैसे दिल्ली आपका बॉम्बे में एक्सेल वर्ल्ड है, उसमें कोई झूला ऐसा होगा जिसमें तेजी से ऊपर से नीचे आते हैं। जब तेजी से ऊपर से नीचे आते हैं तो कहां फीलिंग आती है, कैसी आती है? किस हिस्से में फीलिंग आती है शरीर के? इंटेंस फीलिंग कहां पे आती है? स्टमक। सबका एक्सपीरियंस सेम रहता है ना। ऐसा लगता है यहां से कुछ निकल रहा है ना, और आप उसको पकड़ते हो। ये क्या चीज है? और यदि वही आदमी रोज उसी झूले में बैठेगा, फिर इस तरह का फीलिंग बहुत नहीं है ना। तो बेसिकली क्या चीज है, क्या फिनोमिना है? शरीर का ऊपर से नीचे गिरने पे कौन सा नियम लागू होगा? ग्रेविटेशन। ठीक, शरीर का ऊपर से नीचे गिरने में ग्रेविटेशन उसको गिरता है तो एक नेचुरल लॉ के तहत गिरता है। और जीवन का ऊपर से नीचे गिरने में कौन सा नियम लागू होगा? जीवन का ऊपर से नीचे गिरने में कौन सा नियम लागू होगा? शरीर के साथ रहने का। शरीर के साथ रहने का। उसकी स्वीकृति है कि इसके साथ में मैं हूं, है ना। जिस दिन स्वीकृति नहीं है, ले जाके पटरी पर रख ही देता है, दो टुकड़ा हो ही जाता है। ठीक, तो जीवन की केवल स्वीकृति है, इस आधार पे वो शरीर के साथ है। तो इस तरह से नीचे गिरने का एक प्रैक्टिस जीवन में नहीं है, इसलिए वो उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाता है। तो एक इम्बैलेंस जीवन और शरीर के बीच, है ना, जो कि पूरे का पूरा जो हमको फीलिंग है, वो पूरा का पूरा इम्बैलेंस हुआ है ना। उसी को प्रैक्टिस कर लेता है ना, तो वो नहीं आता है।